हेलो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था, सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स बचे रह गए थे, इम्पल्स और फ्रिक्शन इन फाउंडेशन सेक्शन। सो फर्स्ट वी विल स्टडी इम्पल्स टुडे। नाउ व्हाट इज इम्पल्स? अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो इम्पल्स क्या है? एक झटका। कोई भी बहुत हैवी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स कभी किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के बहुत थोड़े समय के लिए काम करे, लाइक दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। यू कैन से घूसा, या अगर हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहें तो व्हेन अ बॉल कम्स, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल, ही यूजेस एम्पल अमाउंट ऑफ फोर्स बट फॉर अ फ्यू सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स की जनरल डेफिनेशन यही है कि अ लार्ज force acting for a very small fraction of time. Okay, so when we talk about impulse, the large force acting for the small fraction of time or a small interval of time. So first we can write F into delta t. F is what? This is called impulse denoted by I. Okay, what is F? Whenever we calculate or whenever we use the force in equations or in the application, we always talk about average force. तो force की definition हमने क्या पढ़ी है? F is equal to delta P by delta T. In the second law we have studied that. So we'll replace this value. So see what will happen. Delta P by delta T cross delta T. This delta T will be cancelled out. तो हम ये कह सकते हैं कि impulse will be equal to delta P, or impulse also can be termed as change in momentum. Okay, so change in momentum also can be termed as impulse. So second, after this we'll study its unit. Again, what will be the unit of impulse? The unit of momentum. So what is momentum? Mass into velocity. So either we can say kg meter per second, one unit, or if we talk from this formula, we can say this Newton second. Okay, Newton second. These two units will denote impulse. These are the unit of impulse. Okay, next, some application of impulse. So when we talk about application of impulse in daily life, whenever we feel any sudden change in the direction of any object, moving object, or speed of any moving object, या किसी रुकी हुई चीज को हम किसी को चाटा मारते हैं, व्हाट वी डू, दैट इज इम्पल्स। तो एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स के एप्लीकेशन, जब हम इम्पल्स को कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, सो विल अप्लाई इन फॉर्म ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओनली। अगर कोई ऑब्जेक्ट m मास का किसी v1 वेलोसिटी से चल रहा है और अचानक से हमने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी v2 वेलोसिटी में, तो हम जब इम्पल्स कैलकुलेट करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करके विल डू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. So from this formula only, if any ball, suppose this is a object, it is moving with velocity v1 of mass m. After few time we have given some external force, और हमने किसी तरीके से इसको किक किया, मान लो ये फुटबॉल है, we have kicked this, and after kicking its velocity will become v2, mass will remain same. Okay, so when we will have to calculate impulse will be final momentum P final minus P initial. So m v2 minus m
v1. Okay, so in this form it will be applied in the numerical problems. Okay, so let's understand impulse by a question. Suppose a ball of mass 100 gram moving with velocity 10 meter per second, and it brought to rest in t is equal to 0.2 seconds. It brought to rest. Okay, so calculate. You are supposed to calculate first the impulse, second the force, अप्लाइड. ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं. कीप इट असाइड. नाउ सी, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज इन एवरी क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप विल बी द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. आप लोगों को याद रखना है स्टेप वन क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. तो इसके सोल्यूशन में पहला 10 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड इज ऑलरेडी इन एसआई यूनिट, नो चेंज. दिस 100 ग्राम, सो मास विल बी 100 ग्राम, विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू kilogram, so divided by 1000 kg, it means 0.1 kg we can write. Okay, now conversion is completed. Time is already given 0.2 second, and initial velocity of the ball u is given how much, 10 meter per second. Okay, now first thing, we are supposed to find impulse. So impulse, how will find impulse? I is equal to, we have the formula F into T or delta T, change in time. Okay, क्या हमारे पास force है यहाँ? We don't have force, so we will use the alternative method, जिसमें हम जानते हैं कि impulse is the change of momentum. It means we will write m v minus m u. This will be the final momentum, दिस विल बी द इनिशियल मोमेंटम. तो अब बताइए, अगर u 10 है और हम इस बॉल को रेस्ट में ले आ रहे हैं, जिस बच्चे ने इस बॉल को किक किया होगा, पैर से रोका होगा, वो रेस्ट में ले आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दैट v इज इक्वल टू 0 सिंस इट इज ब्रॉट टू रेस्ट. सो फाइनल मोमेंटम विल बी मास, वट एवर मास इट्स 0.1 into final velocity will be 0, so final momentum will be 0. What will be the initial momentum? 0.1 into initial speed is how much, 10 meter per second. This will be 10 meter per second. It means final answer will be something 1 minus 1 Newton second. Okay, माइनस वन. नेगेटिव इम्पल्स, नेगेटिव मतलब अगर हम किसी बॉल को किक करें तो वो बॉल चल सकती है. अगर कोई रखी हुई फुटबॉल है, किक इट विल स्टार्ट मूविंग विद सम वेलोसिटी, बट उसी बॉल को हम रोक भी तो सकते हैं. सो व्हाट दिस माइनस साइन डिनोट्स, ये नेगेटिव फोर्स लगा है, वेलोसिटी कम की गई है, बॉडी, मूविंग बॉडी का मोमेंटम कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है. ओके, सो सेकेंड थिंग, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. Now we'll go for second part. Stop the slide, note it down. If there is any kind of doubt, you can drop in comment section. Okay. Again, we got this value also, I is equal to -1. Okay. Correct. Second part of the question, we are supposed to find the force applied. So we'll use this formula only. Impulse is how much? -1. Second part of the question, impulse is -1, force we don't know, time we know, how much, 0.2 second. Okay, so for finding force, what we'll do, we will shift this 0.2 to the denominator, -1 by 0.2. we'll solve it and we will get the answer. ये मैं आप पर छोड़ता हूँ solve करना. If you find any difficulty in solving this, tell me in comment section, I will address it. Okay, now after understanding impulse, we will study now friction. This is just a topic, this is not in very much detail in 9th foundation syllabus. We just study an introduction of, because
it is also in the 8th class. It was introduced. So now we will go in little bit more depth about friction. So फ्रिक्शन, पहली चीज हमको पढ़ना है कॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज. जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, तो अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, मान लो एक फ्लोर है, इस फ्लोर पे एक बॉडी रखी हुई है, एक कार्डबोर्ड या गत्ता या कार्टन कुछ भी रखा हुआ है. हम अगर इसकी सरफेसेस को, जिस सरफेस पे ये दोनों एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इसको मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा बहुत जूम करके, तो मुझे कैसा दिखाई देगा कि इसके बीच में बहुत सारे छोटे 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 इरेगुलर ग्रूव्स हैं. ऑल्दो वो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं है, बट ये बहुत सारी सरफेस में इरेगुलरिटीज हैं, बहुत सारे ग्रूव्स हैं, ऐसे सरफेसेस जो एक दूसरे को इंटरलॉक करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली ये ग्रूव्स मेन कॉज होते हैं फ्रिक्शन का. ओके. तो अब हम इस कॉज को, अब ये फ्रिक्शन, इसको फॉर्मुलाइज करते हैं. तो जब मैं इसको सरकाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये इंटरलॉक्स जो एक दूसरे से अटैच हो गए हैं, पहले मुझे क्या करना होगा, इनको तोड़ना होगा. जब ये इंटरलॉक टूट जाएगा तब दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग. जब तक ये इंटरलॉक नहीं टूटेगा तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, और जब ये मूव भी करने लगेगा तब भी ये फ्रिक्शन लगता रहेगा. ओके. सो द कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज द इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस. सरफेस जितनी ज्यादा स्मूथ होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा. ठीक है. इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेशन करते हैं, इसमें ग्रीस भर देते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं. तो ऑयलिंग क्या करता है, इनके ग्रूव्स में फिलअप हो जाता है और इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है ना. सो लेट्स स्टडी नाउ द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके. its cause, second its types. पहला टाइप है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे मान लो, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे. जब तक कोई बॉडी स्टेबल है, जब तक कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस ऑब्जेक्ट इज स्टेबल ऑन दिस सरफेस, मैं यहां से कुछ फोर्स लगाऊंगा, है ना बच्चों. तो एक सर्टेन फोर्स लगाने के बाद ही आगे जाना शुरू होगा, है ना. ऐसा तो नहीं कि हमने जरा सा फोर्स लगा और मूव कर गया, क्योंकि इसके पास फ्रिक्शन है, इसके ग्रूव्स हैं और वो आपस में इंटरलॉक्ड है. ये इंटरलॉक तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. तो जिस अमाउंट पे ये इंटरलॉक ब्रेक होगा और ये आगे जाना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेबल टू मोशन. It will bring in motion, that will be called as static friction. तो हम उस फोर्स पे static friction बोलेंगे which applies in the state of rest. ओके. तो अब बताओ, अगर हम static friction की बात करें, state of rest में लगेगा. जब भी आपको कुछ लिखना हो, stop this slide and write it down. ओके. अब अगर मान लो इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए, मान लो एक 20 किलो का बॉक्स रखा हुआ है जमीन पर जिसे आपको खिसकाना है, तो अगर एक 4 साल का बच्चा खिसकाने की कोशिश करेगा तो शायद वो उससे ना खिसके, बट 20 किलो का है तो आप जिस एज में है लगभग आप यू कैन मेक इट स्लाइड. बट अब क्या होगा, तो देखो, अगर इसका मास है, अगर इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए 20 न्यूटन फोर्स चाहिए, और अगर मैं यहां 10 न्यूटन लगाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉडी, हमने पढ़ा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, बैलेंस फोर्स, क्या ये बॉडी मूव करेगी, नहीं, इट विल नॉट मूव. सो दिस विल बी कॉल्ड एज कैपिटल एफ एंड दिस विल बी कॉल्ड एज स्मॉल एफ. इफ कैपिटल एफ विल बी लेस देन स्मॉल एफ, बॉडी विल नेवर स्लाइड, नेवर. ओके. बट जैसे ही ये फोर्स इस फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको बढ़ा के 20 न्यूटन कर दूंगा बच्चों, तब क्या होगा, 20 न्यूटन होते ही ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, बॉडी विल बी अबाउट टू स्लाइड, वो बिल्कुल खिसकने वाली होगी. जैसे आप जरा भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसको हम लिखेंगे अबाउट टू मूव.
या स्लाइड वटेवर, और अगर इफ जैसे ही ये फोर्स बड़ा हो जाएगा फ्रिक्शन से, क्या हो जाएगा, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शन is self adjusting सो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब तक मैं यहां 10 न्यूटन लगा रहा था तब तक ये फ्रिक्शन में 20 न्यूटन लगेगा क्या? अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा वापस स्टॉपिंग फोर्स तो ये बॉडी उधर जाने लगेगी। क्या होता है क्या ऐसा? तो अगर मैं यहाँ 10 न्यूटन लगा रहा हूं तो 10 लगेगा, मैंने 11 लगाया इसने अपने आप को बढ़ा के 11 किया, मैंने 12 लगाया इसने अपने आप को बढ़ा के 12 किया। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा, जब तक until and unless I will not reach the limit of the friction, it that is 20 न्यूटन in this case, तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन का एक स्पेसिफिक फीचर है कि इट इज ऑलवेज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे ही हम इसको इतना फोर्स देते हैं कि उसको ओवरकम कर जाए, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। ओके, दैट्स ऑल। स्टॉप द स्लाइड एंड राइट इट डाउन। वो 20 को क्रॉस करके चली गई मोशन में, तो सोचो जो मोशन, जो डायनेमिक फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि बॉडी ने एक बार मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नाउ इट विल बी इजियर टू पुश और पुल अ बॉडी। ओके, तो जैसे हम एक ग्राफ बनाते हैं, इसको लिखते हैं अप्लाइड फोर्स ऑन एक्स एक्सिस, वी यूज अप्लाइड फोर्स एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ओके, तो जब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन में शुरू किया, बॉडी अभी रेस्ट में, तो मैंने फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई किया, अप्लाई किया, फ्रिक्शन बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अब फ्रिक्शन पहुंच गया अपनी मैक्सिमम लिमिट पे। तो इसके बाद जैसे ही वो बॉडी मोशन में आना शुरू हुई, बॉडी मूव करना शुरू कर दी, फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा डायनेमिक स्टेट। तो ये वाली स्टेट क्या है? यू कैन से डायनेमिक पार्ट, डायनेमिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। सो हम अगर फ्रिक्शन के, दिस विल बी द मैक्सिमम लिमिटिंग स्टैटिक। ओके, अगर हम फ्रिक्शन की वैल्यूज को इन एन ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लगाना शुरू करें, तो सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है? विल स्टडी। सबसे मिनिमम फ्रिक्शन कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। जब इंसान ने, whenever the civilization started, इंसान की सबसे बड़ी रिवोल्यूशनरी खोज थी आग
और आग के बाद या उसके लगभग समकक्ष कह सकते हैं सबसे रिवोल्यूशनरी खोज क्या थी? पहिए का आविष्कार। तो पहिए ने क्या किया? इसने दो बॉडीज की स्लाइड को प्रिवेंट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया? रोलिंग में। तो अगर हम रोलिंग को देखना चाहें, एक शॉर्ट व्यू ले लें, तो सोचो अगर एक पहिया है तो इस पहिए और इस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो होता है। ये पहिया स्लाइड नहीं करता इस सरफेस पे, तो फ्रिक्शन कब लगता है? ये पहिया रोल करता है। यानी कि जब भी इस पहिए का ये वाला पार्ट इस बॉडी के टच में आएगा तो ये यहां पर स्टेबल रहेगा, स्लाइड नहीं करेगा। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन सबसे मिनिमम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन के बाद आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होता है? दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग। ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स। हम इसको इस ग्राफ से समझ सकते हैं, और नेचुरल लाइफ में भी, जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि जब मुझे किसी बॉडी को एक बार कोई बॉडी मोशन में आ गई, वंस अ बॉडी स्टार्टेड मूविंग, स्लाइडिंग और रोलिंग, उसके बाद वो इजी हो जाता है उसको आगे मूव कराते रहना, आगे कंटिन्यू रखना इजी होता है। बट जब उस बॉडी को डिसकंटिन्यू करते हैं, दैट इज टफ। ओके, जब उस बॉडी को हम मूव कराना शुरू करते हैं और जैसे ही वो मूव करने वाली होती है, उस समय सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, सबसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और जब वो एक बार मोशन में आ जाती है तो जो जस्ट मोमेंट में स्टैटिक से डायनामिक में आने की जो जस्ट बाउंड्री लाइन पोजीशन होती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो इसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, so this is the maximum force which can be applied. Okay, now we'll move for third type of the friction. So next and third and last part is kinetic friction. और इसी को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हेन बॉडी starts moving, in that case the friction applied is called kinetic friction. जब बॉडी चलने लगती है, हमने पढ़ा भी, जब वो रुकी हुई थी तो स्टैटिक था, जस्ट चलने से पहले की जो कंडीशन थी दैट वाज लिमिटिंग, और अब जब बॉडी मूवमेंट में आ गई तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक। तो काइनेटिक की वैल्यू हमेशा स्टैटिक और लिमिटिंग से थोड़ा कम होगी। ओके, नेक्स्ट, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्लाइडिंग, सेकेंड इज रोलिंग। यू कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली कि स्लाइडिंग मतलब जब दो बॉडीज आपस में स्लाइड करेंगी, घिसते हुए जाएंगी, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और सेकेंड पार्ट रोलिंग, यानी कि जब हम एक पहिए को चलाएंगे और ये रोल करना शुरू करेगा, दैट इन दैट केस रोलिंग फ्रिक्शन विल बी अप्लाइड। सो अब कॉमन सेंस अगर हम यूज करें तो भी हम ये कह सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, सो इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देखते ही रहते हो। रोलिंग फ्रिक्शन, कार, पहिए, जो भी मूविंग बॉडीज है जो कि पहियों पर चलती हैं, उनमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। तो अगर एक कार बिना पहियों के जमीन पे रखी होती तो उसको खिसकाने में हमारी नानी याद आ जाती। बट अब जब वो बॉडी, जब वो पहियों पर है, तो उस कार को दो चार लोग मिलकर के खिसका सकते हैं, मूव करा सकते हैं थोड़ी दूर तक। तो कितना कम हुआ फ्रिक्शन। सो रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग इज जस्ट अ मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, इसके बाद कुछ टॉपिक्स और हैं फ्रिक्शन में। हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल, हाउ कम इट इज नेसेसरी इविल बच्चों? व्हाट इज नेसेसरी? अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इस बोर्ड पे ये मार्कर घिस रहा हूं और ये मार्कर स्लाइड नहीं कर रहा है, बिल्कुल फिसल के नहीं निकल जा रहा, मैं जमीन पे खड़ा हूं और मैं खड़ा हो सकता हूं। तो क्यों खड़ा हो सकता हूं? क्योंकि मेरे पैर में
और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शन है जो कि प्रिवेंट कर रहा है मुझे फिसलने से। तो इस दुनिया में जो भी बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्टेबल है वो क्यों स्टेबल है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसलिए फ्रिक्शन क्या है? नेसेसिटी। और इविल क्यों है? नेसेसिटी है, फ्रिक्शन नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में किसी भी चीज का एक से दूसरे के ऊपर एग्जिस्ट करना, पहली चीज। और दूसरा, इविल क्यों है ये? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ही, फ्रिक्शन क्या होता है? हीट जनरेशन। जब हम वो इंटरलॉक तोड़ते हैं तो ये क्या होगा? जब ये स्लाइड करेंगे तो ये आपस में घिसेंगे और लॉस ऑफ एनर्जी होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड को इस इंटरलॉक को तोड़ना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई मशीनों में वियर एंड टियर होता है, आपकी चप्पलें घिस जाती हैं, और जो भी मशीन्स होती है, मूविंग पार्ट्स होते हैं, टायर घिस जाते हैं गाड़ियों के, जल्दी खराब हो जाते हैं, हीट जनरेशन होती है। क्यों होती है? बिकॉज दैट इज एन इविल। बट ये इविल होते हुए भी नेसेसरी है, जिसको हम इरेडिकेट नहीं कर सकते। सो वी विल हैव टू सस्टेन विद इट और वी विल हैव टू बियर विद इट। That's all about Newton's laws of motion. This was the second part of video. In the next class, we will come with new chapter or next chapter that is called gravitation. Okay. So thank you all. Have a nice day.